Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आउटलुक हिंदी के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनीजा डैंग। Thank you, Sonu. Yes, the headlines. Benchmark indices rally for fifth straight session. Nifty crosses 11,000 mark. Sensex closes near 37,000 level. Brent crude prices fall to trade below $62 per barrel and gold price eases to 34,450 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. प्रमुख बाजार सूचकांक लगातार पांचवें सत्र तेजी में। निफ्टी 11,000 से ऊपर पहुंचा। सेंसेक्स 37,000 के स्तर के करीब हुआ बंद। ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य गिरकर $62 प्रति बैरल से नीचे पहुंचा। और दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य कम होकर 34,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 358 अंकों के उछाल पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने फिर 11,000 का आंकड़ा पार कर लिया। निवेशकों का अनुमान था कि आरबीआई अपनी नीति पर रुख को बदलकर न्यूट्रल पर ले आएगा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 358 अंकों के उछाल से 36,975 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 128 अंकों के उछाल से 11,062 पर बंद हुआ। कारोबारियों के अनुसार घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की गई लगातार खरीदारी से व्यापारिक धारणा को बढ़ावा मिला। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की नीति की कल होने वाली घोषणा से पहले भी निवेशकों की धारणा सकारात्मक थी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने प्रमुख ब्याज दरों पर निर्णय लेने के लिए कल अपनी 3 दिन की बैठक शुरू की थी। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां पर रुख मिला जुला था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.12% की गिरावट पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.05% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। The BSE benchmark Sensex today rallied 358 points, while the NSE Nifty recaptured the key 11,000 mark as investors wagered on the RBI changing its policy stance to neutral. Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 358 points to end at 36,975. Nifty at the National Stock Exchange also surged 128 points to close at 11,062. Traders said that sustained buying by domestic and foreign institutional investors boosted trading sentiment. They added that investors' sentiment was bullish ahead of the Reserve Bank of India's policy outcome scheduled for tomorrow. The RBI's Monetary Policy Committee, MPC, began its 3-day meet yesterday to decide on key rates. Broader indices, however, ended on a mixed note, with the BSE mid-cap slipping 0.12% and BSE small-cap inching up 0.05%. In the Sensex pack, Bajaj Finance, Tata Steel, ONGC, Bajaj Auto, Sun Pharma, NPTC, Coal India, Maruti, Tata Motors, ICICI Bank and Reliance surged up to 4.3%. On the other hand, Axis Bank and IndusInd Bank fell up to 0.5%. Sectorally, banking, pharma, metal and IT stocks led the rally, jumping over 2%. Harvey, Sensex nearly closing in on 37,000 mark sounds really good. Usually we say that we are on strong fundamentals now. Do you think what has given this surge?
is it some optimism on the part of the RBI's Monetary Policy Committee? Yes, you are right that optimism towards RBI Monetary Policy Committee is a recommendation. Actually, earlier due to this inflationary pressure, RBI was not hinting towards a rate cut. So maybe with the new governor and this continuous low level of inflation and much below the RBI's target level, so it gives some hope to the market, but at the same time, good result from some corporates as well as the continuous flow of FIs in Indian market compared to January. It is almost 10 times till date. So that is the boosting the मार्केट। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अविनाश गोरखशेखर जो हैं मार्केट एनालिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में अविनाश जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज जो हमने लगातार 5वें सत्र बढ़त देखी है बाजारों में और कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स तक पहुंच गया है, सेंसेक्स करीब 37,000 के और 11,000 को पार कर गया है निफ्टी। ये जो हम बढ़त है ये बजट से एक दिन पहले शुरू हुई थी और तब से हम लगातार ये बढ़त देख रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, क्या बाजार बजट के आउटकम से खुश है? और कल जैसा हमारे स्टूडियो एक्सपर्ट कह रहे थे, कल जो आरबीआई पॉलिसी आने वाली है उसके प्रति आशावादी हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं समझता हूं कि कल की आरबीआई पॉलिसी में काफी हाई लेवल एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कट आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी हद तक नीचे आ चुका है। जो इम्पोर्टेंट बात आरबीआई गवर्नर कहेंगे वो लिक्विडिटी के ऊपर होगा, क्योंकि जो एनबीएफसी का अभी सिनेरियो है प्लस जो आईएलएफएस का जो इशू हुआ था उसके बाद किस प्रकार की लिक्विडिटी मार्केट्स में आरबीआई प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर सबकी नजरें रहेगी। और दूसरा कारण ये भी है कि एफआईज ने लगातार लास्ट 1-2 हफ्तों से जो बाइंग की है वहां पे भी काफी बड़ा निवेश का नंबर इन्होंने इंडियन मार्केट्स में डाला है। तो ये सारी बातें हैं, प्लस थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। तो ये सारी रीजंस अगर हम जोड़ ले तो इस कारण मार्केट का जो रुझान है वो अभी पॉजिटिव हुआ है। आपने लिक्विडिटी की बात करी, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स की अगर हम बात करें तो पीएनबी के जो रिजल्ट्स आए 3 क्वार्टर्स लगातार लॉसेस पोस्ट करने के बाद थर्ड क्वार्टर में उन्होंने 7.1% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में ग्रोथ पोस्ट की है। 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बजट में अनाउंसमेंट हुई है कि उन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकाल लिया गया है। सो आपको लगता है कि शायद जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें एक टर्न अराउंड जो आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? आई थिंक डेफिनेटली अगर हम पीएनबी की बात स्पेसिफिकली कहें तो डेफिनेटली तीसरा तिमाही का जो क्वार्टर है वो काफी अच्छा था। इनफैक्ट मार्केट को उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में भी बैंक लॉस दिखाएगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे वापस पीएनबी ने एक एंट्री की है। हमको लग रहा है कि हालांकि अभी भी एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस जरूर रहेगा, लेकिन जो नीरव मोदी को लेके जो भी बैड प्रोविजनिंग थी वो बैंक ने कहा है कि उन्होंने पूरी तरह से प्रोवाइड की है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और कंफर्ट वाली बात है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको पीएसयू एज वेल एज प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छा अप ट्रेंड देखने की उम्मीद रहेगी। होपफुली एसेट क्वालिटी का जो ट्रेंड है वो पीएनबी और मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी वेल कंट्रोल होना चाहिए। Avinash, we see that the banking sector seems to be doing well, but as you just mentioned and Sonu just mentioned about the profits which PNB has been clocking, can we also attribute it to the resolution of the NPA issues now? The government has been at it for quite some time now. No, I think, basically, PNB already had an asset quality problem, and over and above that, the Nirav Modi, development actually hit its asset quality very badly. So the bank has very clearly mentioned that, the Nirav Modi provisioning has already been made, but there are other loans where the asset quality continues to be pretty weak. So I would believe that maybe another 1 or 2 quarters you might see the trend in asset quality remaining challenging. But hopefully, I would believe that, the major asset quality issue is now out of the woods, and you could see some revival in the PSU banks. Hopefully, these banks are likely to also get fresh capital from the government, and that would actually also aid them. But overall, I think it's going to be at least 1 or 2 quarters before we see a complete recovery. अविनाश जी, इससे पहले कि हम डिस्कशन खत्म करें, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं लार्ज कैप्स के बीच और स्मॉल कैप और मिड कैप की परफॉर्मेंस के बीच, ये क्या दर्शा रहा है? क्या अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी कंसोलिडेशन चल रही है? ब्रॉडर मार्केट में हम कब देखेंगे बढ़त का रुख? मैं आई थिंक ब्रॉडर मार्केट का रुख आपको इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। आपने सही कहा कि अभी भी मार्केट्स की जो चाल है वो गिने चुने शेयर से ही चल रही है, और जो ब्रॉड मार्केट है
वहां पे अभी भी बिकवाली का माहौल है, अभी भी कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं है और ये मेरे ख्याल से इलेक्शंस के बाद में ही रिकवरी होने की चांसेस है। हालांकि अभी ऊपरी लेवल से मिड कैप और छोटे मिजोले जो शेयर्स है वो काफी सिग्निफिकेंटली गिरे हैं। डाउन साइड के लिए अभी जगह कम है, लेकिन फिर भी जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है वो अभी तक लार्ज कैप में ही रहेगा और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इलेक्शंस होने तक ये सिनेरियो बदलने वाला नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अविनाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेके हम आपसे ये चर्चा जारी रखेंगे। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। अविनाश जी, जैसे हमारे स्टूडियो एक्सपर्ट अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आज भी ल्यूपिन का जैसे रिजल्ट आया है, उन्होंने लॉस पोस्ट किया है। क्या लगता है आपको ओवरऑल अगर आप देखें सेक्टर वाइज, आप कैसे देख रहे हैं जो रिजल्ट्स आए हैं Q3 के, और आगे आपको क्या आशा है रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट की? नहीं, मुझे लग रहा है कि फार्मा पैक में अगर हम देखें तो आज दो बड़ी कंपनीज के नतीजे आ गए, सिप्ला और लुपिन के। दोनों ही नतीजे काफी डिसअपॉइंटिंग थे। सिप्ला ने करीबन 17% का प्रॉफिट ड्रॉप रिकॉर्ड किया है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी वीक है। अगर हम लुपिन की बात करें तो लुपिन में एक एक्सेप्शनल आइटम 342 करोड़ का आने से कंपनी ने एक नेट लॉस रिकॉर्ड किया है। होपफुली हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट का जो रुझान और कमेंट्री है वो आने वाले क्वार्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि फार्मा स्पेस में सिलेक्टिवली डेफिनेटली आपको अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऊपरी लेवल से फार्मा स्टॉक्स स्पेशली फ्रंटलाइन कंपनीज काफी बुरी तरह से पिट गई है। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वहां पे मैं समझता हूँ पॉसिबिलिटी है कि नंबर्स अच्छे आएंगे, जैसे कि IT, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट जहां पे एक्सपोर्ट का ज्यादा प्रेजेंस है, और प्लस जो रूरल रिलेटेड कंजम्पशन थीम है जिस बजट में अभी हम लोग ने काफी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से अनाउंसमेंट देखे हैं, तो कंजम्पशन रिलेटेड जो FMCG कंपनीज है वहां पे हमको लग रहा है कि निवेश का और क्वार्टरली नंबर्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी अच्छा रहेगा। Avinash, the fact that Bajaj Auto and Maruti and Tata Motors have shown a surge, do you think it's a reflection of the auto sector doing well? See, I think clearly after the budget there has been some bounce in two-wheeler and the four-wheeler stocks, largely on the hopes that whatever liquidity comes in the hands of customers is going to be spent on consumption, especially the automotive sector. I would believe that maybe for the next 1 or 2 months, the challenging headwinds in the automobile space will continue. We could see probably a recovery, only from April and May onwards. In fact, this has been highlighted by managements of both Maruti as well as most of the two-wheeler companies. So I would believe that, investors should actually be a little cautious and not actually get into this rally immediately. Maybe after a couple of months, one could definitely, enter these stocks where possibly some confirmation of volume could be found. अविनाश जी, जो टैक्स रिलीफ दिया है मिडिल क्लासेस को बजट में, और जो एक तरह से कंसर्टेड एफर्ट कर रही है सरकार मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को रियायतें देने में, GST में हो चाहे किसी और बिजनेस पैरामीटर में हो, आपको लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो जल्दी ही उसमें हम एक इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से जो भी कंपनीज कंजम्पशन स्पेस में है और मिड कैप कैटेगरी में आते हैं, हमको लग रहा है कि वहां पे डेफिनेटली डिमांड सिनेरियो आने वाले 3 से 6 महीने में जरूर इंप्रूव होगा, क्योंकि लिक्विडिटी जैसी जैसी फार्मर लोग को हाथ में आएगी वो बेसिकली खाने पीने की चीजें और जो कंजम्पशन रिलेटेड आइटम्स है वो खरीदेंगे। और वो स्पेस में जो कंपनीज काम कर रही है, जैसे कि FMCG है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स है, रूरल रिलेटेड जो कंपनीज है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली इन कंपनीज को फायदा होगा और डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को ये शेयरों में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा ऊपरी लेवल से काफी जोर की पिटाई हो चुकी, तो अभी डाउन साइड के लिए जगह कम है, लेकिन निवेश का टाइम फ्रेम कम से कम साल भर का रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए।
श्रोताओं, ये थे अविनाश गोरक्षकर, मार्केट एनालिस्ट, जो बाजार के आज के चलन पर हमसे बात कर रहे थे। और अब रुक करते हैं करेंसी मार्केट का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 1 पैसे मजबूत होकर $71.56 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सत्र में रुपया 24 पैसे की मजबूती से $71.57 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ था। हरवीर, आप क्या कहेंगे? कई लोग कहते हैं कि करेंसी और ऑयल प्राइसेस में जो वॉलेटिलिटी थी वो एक बहुत नेगेटिव फैक्टर था Q3 में कंपनीज के लिए। आपको लगता है कि जो स्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी थी इन दो पैरामीटर्स में, वो अब शायद अब खत्म हो गई है? हाँ, क्योंकि देखिए दोनों या तो कॉस्ट में ऐड करते हैं या इनकम के ऊपर असर डालते हैं। अगर ऑयल एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी तो नेचुरली कंपनियों का इनपुट कॉस्ट बढ़ता है, और क्योंकि हमारा इंपोर्ट के ऊपर हम लोग काफी सारा फॉरेक्स खर्च करते हैं तो उसका सीधा रुपए का जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो ये साथ में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, वॉलेटिलिटी उनके लिए अनसर्टेनिटी लेकर के आती है, क्योंकि वो जो डॉलर अर्न करते हैं उसके हिसाब से उनको किस तरीके का उनका बेनिफिट इंडियन करेंसी के हिसाब से होगा। तो ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि और मोर और लेस काफी दिन हो गए अब कि रुपया भी और क्रूड भी वो काफी स्टेबल एक लिमिटेड फेज में ये लोग मूव कर रहे हैं। We saw that now the farmers will be given, small farmers owning 2 hectares of land would be given 6,000 per year. Do you think this kind of a proposal, liquidity, will increase liquidity among farmers and will increase demand in rural area and thereby increase the GDP, rural GDP in some way? Yes, actually it has a direct relation with the rural GDP. Any kind of extra spending in rural area or whatever money goes into the hand of the rural community, whether it's a farmer or laborer, you see Manrega or you see the loan waiver or you see the direct benefit transfer to the farmers, it comes back in the form of basically demand. And because these people are supposed to spend entire money, and it gives a boost to the demand for other manufacturing goods in that area. So definitely it will have a positive side, and as much more money will go into the hand or government spends in that area, it boosts. If you see 2008-9 boom, particularly for consumer durables or FMCG, it came on the back of farm loan waiver, because government pumped almost more than 50,000 crore into the rural economy, and it came back in the form of demand from that area. So definitely this move, whatever the benefit farmer will get through this direct benefit transfer, but it will have an impact on demand from the rural India. When we talk of a farmer, do we also consider it to be an umbrella term and includes those who are involved in beekeeping or sericulture? No, actually this scheme will benefit only those who are the landowners. So there is a clear criteria, though any farming family or member who owns less than 2 hectares of land will get this benefit in terms of first installment, as well as the money will be given to the farmer in 3 installment of rupees 2,000 per installment. हरवीर जी, जैसा कहा है बजट में कि ये उनको एक सपोर्ट देने के लिए दिया गया है, मॉनेटरी सपोर्ट, ताकि वो बीज खरीद पाएं और अपनी जो प्रोडक्शन है, फार्म प्रोडक्शन है, उसमें उनको एक सहारा मिले। आज हम देख रहे हैं ऑफ लेट की फार्म जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी अच्छी हो गई है। इनफैक्ट कई बार ग्लट हो जाता है, ओवर सप्लाई का एक सिचुएशन हो जाती है। सो सेंटर ने अभी कहा है कि वो स्टेट्स को रैंक करने की सोच रहे हैं ऑन ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्रोड्यूस है उसको आप बाजार तक पहुंचा पाएं समय पर और आपको सही उसके लिए दाम मिल पाए। देखिए, आपने सही कहा है कि अगर हम प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन के फ्रंट पे हमने काफी अचीव कर लिया है। वो फूड ग्रेन की कमोडिटी हो, मिल्क प्रोडक्शन हो या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, लगभग एडिबल ऑयल को अगर हम छोड़ दें, बाकी जगह हम लोग सेल्फ सफिशिएंट से ज्यादा ही हमारे पास है, बहुत सारा स्टॉक्स एक्स्ट्रा है।
शुगर हो, इन सब में। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज की आती है कि फार्मर का जो प्राइस रियलाइजेशन है वो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो जाए। और उसी में पीछे गवर्नमेंट ने जो एमएसपी वगैरह में चेंजेस किया था, उसके साथ एक प्राइम मिनिस्टर आशा स्कीम शुरू की थी, वो मार्केट रिफॉर्म्स और फार्मर्स को मार्केटिंग सपोर्ट के लिए कि उनको किस तरह का दाम ठीक मिल पाए। सो ये एक बड़ा चैलेंज है और इसमें ये जिस तरह का गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है वो सप्लीमेंट करता है, लेकिन जो उनको उनकी इनकम में जो बेहतरी होगी, बिकॉज नाउ पॉलिसी इज इनकम फोकस। पहले हम लोग हमारा एग्रीकल्चर का पूरा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, अभी फार्मर का इनकम ओरिएंटेड हो गया है। तो अभी जो भी पॉलिसी में चेंजेस होते हैं उसका फोकस रहता है कि फार्मर की इनकम कैसे बढ़े। तो ये उसके लिए मार्केटिंग रिफॉर्म्स और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर प्राइस रियलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरफ हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अ सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट थ्रू द NSC GoBid मोबाइल ऐप। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट ₹10,000। डाउनलोड द ऐप टुडे। मार्केट मंच में आपका फिर स्वागत है। आपसे एक और जानना चाहेंगे कि बिजनेस जो एग्रीकल्चरल है उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की एक्सपोर्ट्स के लिए क्या स्कोप है हमारे प्रोडक्ट्स का? अगर हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं रिकॉर्ड प्रोडक्शन है हमारी, मिल्क हो चाहे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हो, तो क्या स्कोप है कि हम इस प्रोडक्ट को के लिए बाहर बाजार ढूंढ पाए? हाँ, एक्चुअली ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक काम है और इसके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या सरप्लस है। दूसरे ये है कि हमारे पास जो सरप्लस है उसका डिमांड किन मार्केट्स में है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या हम प्राइस में कॉम्पिटिटिव हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जब भी हम अपना प्रोड्यूस लेकर के जाएंगे हमें वहां पर प्राइस कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, तभी वहां का जो मार्केट है वो हमारे गुड्स को एक्सेप्ट करेगा। तो इस पे हमें सिस्टमेटिक काम करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है कि फार्मर्स को बेहतर आमदनी के लिए हम लोग एक्सपोर्ट पे काफी फोकस हमें करना चाहिए। और लेकिन काफी कुछ जो ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स, प्राइसेस इनका जो है उस पर भी डिपेंड करता है। डिस्पाइट दैट potential to hai hamare liye. Two quick questions, Harveer, which are probably interlinked. One is that, is it a tightrope walk for the government to, while on the one hand we are ensuring increase in production, on the other hand we want to keep the inflation low, which has actually happened, and on the other hand we want the farmers to have their income increased, as we're saying, doubling in 5 years. That's one thing. Secondly, can we have any value addition by increasing food processing possibilities since the production has gone up? It is possible to keep inflation low despite good production, as well as actually good production, the first condition to keep the prices low. Mm-hmm. But farmer should get the good price. This is also an important aspect. That's why only after that he will grow more crops. But if we are able to eradicate middleman between the farm and the consumer, farmer and consumer, so even farmers will also get good price, as well as the inflation will remain low, because there are studies, despite this increase in minimum support price, it doesn't directly affect the inflation, because inflation comes due to unusual price hike, and these prices are not unusually high. So even if all the farmers get good MSP, and if they get good MSP, so definitely their income will be very good. So we have to keep a track on the basically on the market trends, as well as we have to strengthen the market infrastructure. And your second question is also valid, because if we are able to process more and more agro produce, only in that case we can increase farmers' income. You know, any value addition increase basically in multiple form of the earnings. So in that case, if we can increase this level of processing, so it will be good. रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। सभी प्रमुख एशियाई बाजार आज बंद थे, सिवाय जापान के, जहां निक्केई सूचकांक आज 0.1% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां गिरावट का रुख था। लंदन के फुटसी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। फ्रांस का कैक 0.2% के नुकसान पर था और जर्मनी के डैक्स में 0.5% की गिरावट चल रही थी। A look at the US market now. Well, the US stocks rose yesterday as largely upbeat corporate results fueled investor
optimism ahead of the highly awaited State of the Union address by President Donald Trump. The Dow Jones Industrial Average and Nasdaq Composite Index both gained 0.7%, while S&P 500 gained 0.5%. अमेरिका और चीन की जो डिस्प्यूट है, अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो यूएन ने आज कहा है कि बाकी देश और इंक्लूडिंग इंडिया, उनके एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा. उन्होंने इनफैक्ट एक अनुमान दिया है कि 3.5% भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं. सो आप कितने आशावादी हैं? क्या हमारे लिए नेट क्या रिजल्ट होगा अगर मार्च 1 को टैरिफ्स बढ़ जाते हैं? मैं एक्चुअली ये तो हमें देखना पड़ेगा कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ बढ़ते हैं दोनों तरफ से, क्या उन देशों में हमारे लिए मार्केट अवेलेबल, नेचुरली बिकॉज ये इन्हीं दो देशों के मार्केट की बात हो रही है कि यूएस में जो चाइनीज गुड्स जाएगा उस पर टैरिफ बढ़ जाएगा, क्या हमारा प्रोडक्ट उसको सब्स्टिट्यूट करता है? क्या हमारा टैरिफ नहीं बढ़ेगा तो देन वी विल बी एबल टू गेट मोर एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन यूएस. सेम थिंग फॉर चाइना. इट विल डिपेंड ऑन दैट. वी हैव टू लुक आवर बेसिकली द बास्केट ऑफ द प्रोडक्ट विच विल सब्स्टिट्यूट दिस चाइनीज एक्सपोर्ट टू यूएस और यूएस एक्सपोर्ट टू चाइना. ऐसे में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए हमारी कोई संभावनाएं बनती हैं? एग्रीकल्चर का एक्चुअली चाइना में कुछ पोटेंशियल हमारे लिए है. यूएस में कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमारे लिए एग्रीकल्चर का नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यूएस में जो जिस तरीके का प्रोडक्ट्स का डिमांड और ये सब है, वहां काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है. और आप क्या कहेंगे, जो यूएस फेड का क्या रवैया आपको लगता है आगे होगा? और यूएस फेड की जो मीटिंग होने वाली है फरवरी 21 को, उसमें आपको क्या लगता है उनका टाइटन करने का रुख होगा या जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी का रुख होगा? और उस सबको देखते हुए और बाकी सभी चीजों को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए ब्रीफली बताएंगे कल आप आरबीआई से क्या अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, आरबीआई का मेरे ख्याल से बिकॉज जिस तरीके से, एक तो मैं कहूंगा कि लीडरशिप चेंज है और हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि इन्फ्लेशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल और इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है. और सरकार भी चाहती है कि इकोनॉमी को एक बूस्टर डोज मिले और थोड़ा लिक्विडिटी का बेहतर एक उसमें माहौल बने, जिससे कि इन्वेस्टमेंट के लिए लो कॉस्ट के ऊपर आपका रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए. Right, moving on to oil. Oil today fell below $62 a barrel after a report showed a rise in U.S. crude inventories, while concerns about the impact on global supplies of U.S. sanctions on Venezuela faded. Brent crude prices were trading around $61.50 per barrel, while WTI prices were at around $53.20 per barrel when reports last came in. What effect would that have on the Indian economy? $62 a barrel now. Actually, this sanction on Venezuela, because Venezuela is also very important supplier of crude, and the kind of development in that area will affect the crude price in the coming days. If it goes upwards, it is negative for us. If it comes down, it is good for us. Yes, yes. चलते हैं सराफा बाजार की ओर. आभूषण निर्माताओं की मांग कम रहने से दिल्ली सराफा बाजार में सोने के मूल्य में 25 रुपए की मामूली गिरावट आई और ये 34,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ. चांदी की मांग औद्योगिक इकाइयों और सिक्के बनाने वालों में कम रहने से चांदी भी 320 रुपए लुढ़ककर 41,380 रुपए प्रति किलो पर आ गई. कारोबारियों के अनुसार सोने की मांग स्थानीय आभूषण निर्माताओं में कम रहने के अलावा कमजोर वैश्विक रुख का भी दबाव कीमतों पर पड़ा. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क के बाजार में सोना गिरावट दर्ज करता हुआ $1,313.58 प्रति आउंस पर था. चांदी भी मंदी के साथ $15.75 प्रति आउंस पर थी. आखिरी क्वेश्चन भी तेल से ही जुड़ा हुआ है. आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स के साथ साथ जो तेल की कीमत है वो भी भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है? बिल्कुल, अगर तेल कम होगा तो इसका इन्फ्लेशनरी, बिकॉज इट ऑल्सो कंट्रोल इन्फ्लेशन, दैट इज गुड फॉर अस. बहुत बहुत धन्यवाद हरवीर इस विस्तृत चर्चा के लिए. शुक्रिया. Another headlines: benchmark indices rally for fifth straight session. Nifty crosses 11,000 mark. Sensex closes near 37,000 level. Brent crude prices fall to trade below $62 per barrel, and gold price eases to 34,450 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. That's all we have for you. On that note, it's time for us to bid adieu. Namaskar. Market